Sarthak Balani, welcome to the Find Your Ultra podcast. We ran from Tokyo to Mount Fuji. I think after the Japan run, you did like a series on the manholes there in Japan. The way they're designed. It was so interesting. सबसे interesting चीज तो मेरे को आज तक ये लगती है कि रास्ते पे एक कचरे का तिनका नहीं था. There was no plastic. There was nothing at all. So let's talk about barefoot running. How did that happen to you? Credit goes to Milind sir. जिनके साथ मैंने 5 साल उनकी कंपनी पिंकाथॉन में काम किया था. What is the difference that you feel in running barefoot versus running in shoes? I'm not even kidding, not exaggerating. That first run itself, भले वो 1-2.5 किलोमीटर का था, but it had such an impact on the entire posture. मतलब ऐसा नहीं था कि एक consciously वो posture change नहीं हुआ. It all happened naturally. And it felt so different. मेरे लिए तो बहुत वो आश्चर्यचकित बात आज टिल डेट तक है कि हाउ द वो पोस्चर करेक्शन कैसे हो सकता है. मतलब तुम जूते में दौड़ रहे हो, उसके बाद अचानक तुम जूते निकले, तुम दौड़ना शुरू किया तो तुम्हारा बैक स्ट्रेट हो गया, तुम मतलब सब चीजें एकदम बढ़िया हो गई अचानक से. ये एक एस्पेक्ट जो रोकता है लोगों को barefoot करने से, which is गंदगी. दो चीज तो, एक तो वो चोट लगने का डर और दूसरा वो एक वो गंदगी से एक जो घिन आती है. सैड हो जाता हूँ अगर मैं वो कचरा दिख गया. बट थ्रू आउट द डे जो व्हेन आई सी पीपल ना, तब मैं उनको रोकता हूँ. मेरे को लगता है कि मैं 2 जन को भी रोकूंगा ना तो अगले दिन मेरे को शायद साला 2 गुटके की पिचकारी कम दिखेगी रास्ते पे. You run backward also. Backward looks like a gimmick and that's what most people would say कि भाई क्यों, क्या जरूरत है, this is just show off or whatever, right? मुझे बहुत मजा आती है जब लोगों के रिएक्शंस देखने और सुनने मिलते हैं बैकवर्ड. What are some of the best reactions or the worst reactions that you've got on the road? There have been instances. So dude, you're here for Hyrox. Yes. You've done Hyrox Mumbai as well. I did. And yesterday you did Hyrox Delhi. I did. What was the experience like? The first Hyrox that I did in Bombay, उसने ही मुझे पागल कर दिया था. In a very positive way. कि Hyrox ऐसी जगह है ना जहाँ पे most of the men you will see shirtless. Shirtless, yes. That's amazing. वहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वहाँ आप टी शर्ट के साथ अगर कर रहे हो आपका तो आपकी फोटोज कम आएगी. ऐसा लगता है मुझे. No, but it's fun. This is coming from the poster boy of Hyrox. अरे कहाँ poster boy? Got just lucky. Welcome back to the Find Your Ultra podcast. This episode is with Sarthak Malani, who's a barefoot runner, a backward runner. You probably don't know what a backward runner is, right? You will soon. So also a backward runner, he's an ultra runner, and he also sometimes runs forward as well, like us lesser mortals. Sarthak is also a fitness enthusiast. You can call him influencer as well because he's got a wonderful Instagram account. Does not have like 1 million followers. He should, I believe. But it's a fantastic account to follow. I really enjoy following him, watching his workout stories and videos and everything. You should give it a follow. Sarthak Malani. He'll share his handle at the end. He was in Delhi for Hyrox and I'm so glad he made time to meet us. He's met my family, Devendra, everyone here. We're about to have a good conversation. So we're recording the intro first. We don't know what we're going to talk about, but I can promise you this will be about his journey, not just about barefoot and ultra running and what was the other thing? Barefoot, ultra running and backward running. Not just these, but all the other aspects of life as well. His thoughts about life. The kind of life he lives is actually very unconventional. So I'm actually looking forward to knowing him more as a person. Without further ado, let's dive right in. This is me and Sarthak Malani in the Find Your Ultra podcast. Indulge a while. Sarthak Malani, welcome to the Find Your Ultra podcast. Hi Vipin. It's so nice to see you because we're meeting after years. After years, when was the last time? When the last time I think we met, was it in Sri Lanka? No. It was not in Sri Lanka. No. After that, we've done Rajasthan. Oh, we've done Rajasthan. So Rajasthan was the last run. Before Rajasthan, we also did the Northeast run. तो राजस्थान के बाद नहीं गुवाहाटी था. गुवाहाटी उससे पहले था. उसके पहले था. हाँ. तो latest one was Rajasthan. Right? Last one was. हाँ, that's the last time we met. और उस चीज को कितने time हो गया? I think 2021 that was, I think. Wow, really, clearly very bad with numbers. Yeah, that was 2020. So yeah, 4-5 years, man. Good to see you. So good to see you. Good to see you. And you're here for Hyrox. Yes. I'm so glad you made time, man. I'm so glad we met.
मेरी ट्रेन है 8 बजे, I बट आई एम know. ग्लैड आई कुड मेक टाइम. We are squeezing इस in. चीज के लिए हमने पहले भी बात की थी, बट लकीली गॉट टाइम दिस Yeah. टाइम. हाँ, बन गया यार, बढ़िया है. बन गया. Yeah. So let's get to know you. Because we don't have much time, let's dive right into it. Sure. Okay. You're an ultra runner. You run barefoot. You run backwards, and you also run forwards like the rest of us. Which direction is the life heading in? The life heading, wow, that's a tricky one. The life, I think, is heading in different directions right now, is what I could say to you, Vipin. I'm at a very interesting junction in my life, जहाँ मैं बहुत खुश हूँ. I think I'm a 33-year-old guy, और जितने आसपास मेरे दोस्त हैं, जितने लोग हैं, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बिकॉज दे आर ऑल मैरिड, देव गॉट किड्स. तो आई सी कि उनकी लाइफ मेरी आंखों के सामने कैसे चेंज हुई है, एंड फॉर गुड. ठीक है, इज व्हाट दे चोज. बट मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, लोग कई बार जेलस भी होते हैं कि भाई यार मजे की जिंदगी जी रहा है, एंड लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन ऑल्सो कि भाई ये कब तक चलेगा. तो ये चीज़ है हाल फिलहाल. बट क्योंकि काफी लोगों को ये भी लगता है ना कि अनकन्वेंशनल है तो सस्टेनेबल नहीं है, कि जिंदगी में यही थोड़ी करना है. करेक्ट. जो ट्रॉडन पाथ है, जो रास्ता है, वो तो ये वाला कि यहाँ से जाके यहाँ से शादी, ये बच्चे, ये, और फिर तुम मर जाओगे. तो ये इस रास्ते से अलग कैसे जा रहा है, ये कहाँ पहुंचेगा? कभी तो आना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे. दैट्स व्हाट, लाइक दैट्स इट, कन्वेंशनल थिंकिंग. बहुत क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं सुनने. तो बट लकीली मेरे फैमिली से ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है. आई थिंक माई मॉम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट मॉम्स. ऑफकोर्स हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बच्चा शादी करे, बच्चे हो, ताकि वो पोते पोतियों से खेल सके, हर टाइम गुजार सके. बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से मेरी माँ को शायद वो सुख एटलीस्ट अभी नहीं मिल रहा है. Can't say if she will get to experience any of it in future. Mummy, I'm sorry. But For now. Sorry for now. बट हाँ, वो मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है जब मैं दूसरे दोस्तों का या दूसरे लोगों के किस्से सुनता हूँ कि हाउ मच दे स्ट्रगलिंग, फाइंडिंग विमेन टू सेटल विथ, या फिर लड़की मिल रही है सेटल होने के लिए, बट पर्सनली उन्हें इस दिस पॉइंट इन टाइम उनको सेटल नहीं होना है. बट ऑफ कोर्स देयर इज फैमिली प्रेशर, सो दे हैव टू काइंड ऑफ डू इट. तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सिक्योर और लकी फील करता हूँ कि यार ऐसा कुछ एटलीस्ट मेरे सर पे वो बर्डन नहीं है. And you're able to live a life which is, like you said, like I think the most amazing thing about you, knowing you right now, is the fact that you're happy. मतलब मुझे, and that comes across in your content as well. नजर आता है, लगता है कि बंदा मजे कर रहा है और बढ़िया जी रहा है. हालांकि सोशल मीडिया कैन बी वेरी मिसलीडिंग. ऑफ कोर्स आई तो टोटली बिलीव, क्योंकि मेरा काम ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का है, तो मेरे को पता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, किस तरीके से लोग कैमरा के सामने हो जाते हैं. बट ठीक है. But dude, I've met those. Yeah. People, so they've been instances where you're just following somebody on social media and you have a certain image, and when you meet them in real life, it's very different. It's very different. मैं सच बताऊं ना, मैं काफी लोगों को ऐसे मिलता हूं. I'm sorry to interrupt, but like some people who come across as like really authentic and amazing, and you meet them and you realize how crafted everything is. Like they craft every bit of what they portray. Correct. It shows. Yeah. बट हाँ, मैं आपको एक बता रहा था इंस्टेंस वही कि जब मैं कोई सिटी मैराथन्स अटेंड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई लोग मिलते हैं जो इंस्टाग्राम पे शायद मुझे फॉलो कर रहे होंगे, या मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँगा, जिनकी मैं जर्नी कुछ टाइम से देख रहा हूँ. अपने हर किसी के इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स रहते हैं अंटिल यू मीट देम, राइट. तो ऐसा एक आध बार हुआ है कि यार जो मेरा परसेप्शन था उनको इंस्टाग्राम पे देखने का, कि मैं उनकी जर्नी 1-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि XYZ इंसान इस तरीके का है, बट जब मिला तो वो परसेप्शन एकदम ही चेंज हो गया कि नहीं यार, ये ऐसा तो शायद दिख रहा था, वो है नहीं एक्चुअली. ठीक है, आई डोंट नो, आई कांट रियली जज ऐसे मिलके. No, each to their own anyway. Yeah. ठीक है, that's what. But let's give the audience a little bit of context about. So I'm assuming a lot of the people who will listen to this podcast will know you, but a lot of them will not. So let's tell them who Sarthak Malani is, what his journey is like.
So through my eyes, I met you in I think 2018. You were already an ultra runner by then. Were you not? हम लोगों ने पहले I think this 18 or 17 was it when we ran Una to Dharamshala वो last long सबसे run. हाँ वो of the पहला year. ही था मतलब उसके अच्छा, that पहले was your first ultra run. हाँ उसके पहले मैंने ऐसी लंबी रन नहीं की थी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए मैंने 40 किलोमीटर के ऊपर रन किया होगा मोर देन अ फुल मैराथन बट जो असली अल्ट्रा थी वो कह ये सकते हैं वो हमने साथ में ही की थी तो उसके Right. पहले कुछ Right. नहीं था अच्छा नहीं, I was an ultra runner before that. वो मैं जानता हूँ आप थे I'm just anyway. दिग्गज So थे। yeah, that was so much fun, and all the LLRs that we've done have been amazing. क्या क्या fun. किया एक बार हम अगर हमने लोगों- so yeah, why not? I think 2017 or 18. I'm not sure the year. 18 was Sri Lanka actually. So 2017 we ran from Una to Dharamshala in धर्मशाला Himachal in Pradesh, हिमाचल करेक्ट and after that the next year was in Sri Lanka. कोलंबो टू Colombo ऊना वटूना to Una Vatuna. Right. सेकंड वन Distances are usually around 120 all the time, pretty much. 120 130 के बीच में I 130, think वो रहता है। 135 भी शायद रहा है कहीं पे. Correct, correct. I think Guwahati, right? So after Sri Lanka, the next year was in Japan. Japan. Was it? 2019. Tokyo to Mount Fuji, exactly. Right Yes. before COVID is what I remember. Yes, right before COVID. So yeah, we ran from Tokyo to Mount Fuji. Fuji. That Yes. was an interesting one. Amazing. And I love the way you capture things along the run as well. I think after the Japan run, you did like a series on the manholes there in Japan. I The did. way That they're was- designed. It was so interesting. हाँ, It was actually मैं interesting. आप लोग तो आई थिंक सब रन करके लौट गए थे वापस बट Hmm. मैंने और 2 हफ्ते 3 हफ्ते शायद और ट्रिप एक्सटेंड की थी मेरी तो इधर उधर घुमा था बट व्हाट एन इंटरेस्टिंग कंट्री आई मीन माइंड ब्लोन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो मेरे को आज तक ये लगती है कि जब हमने टोक्यो से हमारा रन शुरू किया Hmm. आई डोंट थिंक आपने चीज नोटिस किया आई थिंक वन पॉइंट हमने इस चीज के बारे में बात भी की थी कि रास्ते पे एक कचरे का तिनका नहीं था देयर वाज नो प्लास्टिक देयर वाज नथिंग एट ऑल हम लोगों ने ये भी तो किया था कि चल लेट्स फाइंड कि लेट्स मिलता कितना है। फाइंड पूरे रास्ते में आई थिंक एक रैपर मिला था किसी को और वो भी लग रहा था कि हमें हमने से किसी ने इंडियंस ने फेंका होगा वी डिस्कस आई रिमेंबर दिस डिस्कशन कि ऐसा लग रहा था कि शायद हम में से किसी ने फेंका होगा बट इंटरेस्टिंग नो डस्टबिन्स क्योंकि लोगों का कल्चर ही वहाँ पे ये है कि वो खुद सारा कचरा अपने जिनका अगर जितना भी रहता है तो वो अपने बैग में रखते हैं और दे डंप इट आफ्टर दे रीच होम सो दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो तो वेरी सो अमेजिंग डूड। सॉरी 3 रन हुए हमारे उसके बाद हमने चौथा रन किया था जापान के बाद जापान के बाद नेक्स्ट ईयर वाज गुवाहाटी 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 टू चेरापूंजी गुवाहाटी टू चेरापूंजी वो Yeah. चौथा था और 5वां हमने किया राजस्थान राजस्थान स्टार्ट पॉइंट मेरे को आज तक मैं हमेशा भूल जाता हूँ जैसलमेर लाठी तक टू था। सैम लाठी टू सैम इन राजस्थान वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, it was fun. So that was the last LLR that we did, right? हाँ तो यार we've run quite a bit together. काफी रन किया Yeah. एंड आई रिमेम्बर आई डोंट नो आपने पॉडकास्ट एग्जैक्टली कब शुरू किया है 2023 beginning I launched the podcast. 1st January 2023. 1st January. actually. so been 2 years to that but I remember कि you were the only guy हम 8-10 लोग जब दौड़ते थे who would have a conversation or who could maybe strike a conversation while running with anyone and everyone so no surprise that this podcast has been running for 2 years now और कितने साल चलेगा हाँ यार a crazy one बकैती तो शौक है हमारे but yeah, super. So these are the LLRs that we've done together. These are the runs that we've done together. But you've had like journey of your own, which is amazing. Like it's mind blowing. Like you started doing these long runs by yourself, and you have a very unique way of exploring the places that you run to. Right. So that's fabulous. Talk to in the Find Your Ultra podcast, we usually get to know the person right from the beginning. So Right. so why don't you take us back to your childhood and start from there? okay And like a brief about your upbringing and everything. been a while I have spoken to anyone About about this. my childhood I mean Like, if you ask me, I've not been on a podcast, so I haven't even thought about it like ever. मेरा बचपन कैसा था? हाँ, It's हाँ. yeah. हाँ yeah, क्योंकि go on. unless and until someone asks you आप बचपन की बातें नहीं करोगे Correct. पर आपने पूछा तो लेट्स आपके साथ साथ मैं भी पीछे थोड़ा पास में जाने Relive वाला that हूँ bit. Yeah. Yeah. तो I was born in this really tiny coastal town called Veeraval, जो सोमनाथ टेम्पल के पास में है. सो मम्मी पापा ने शादी की राजस्थान में, उसके बाद वो शादी के बाद डायरेक्टली मूव हुए पोरबंदर. पोरबंदर में मेरा बड़ा भाई बॉर्न हुआ पंकज, और उसके बाद वो मूव हुए वेरावल. और पोरबंदर और वेरावल के बीच का डिस्टेंस है कुछ 100 किलोमीटर. अच्छा. तो
वेरावल इज द प्लेस वेयर आई ग्रू अप, और वेरावल सिटी में भी नहीं, इनफैक्ट मेरे पापा की जहाँ जॉब थी, इट वाज I see that idea for an ultra run there. For you, you should. आई हैव You've done ऑलरेडी that? डन वन. मैं Oh. पोरबंदर से वेरावल रिसेंटली ही रन किया. माय Mm. लास्ट रन वाज दैट अमेजिंग, और मेरे को करना इसलिए ही था अच्छा, कि nice. क्योंकि हिस्ट्री है दोनों हमारी फैमिली की यार. भैया बॉर्न हुआ, मैं वेरावल बॉर्न हुआ, तो हाँ, तो कहाँ थे हम? वेरावल. यस, दिस वेरावल इज अ सिटी वेयर आई वाज बॉर्न. उसके बाद हम अहमदाबाद मूव हुए, वहाँ कुछ साल रहने के बाद तो लास्ट 20 सालों से हम अहमदाबाद में हैं. Okay. एंड yeah, I started running when I was 18. जब मैं कॉलेज में पहुंचा, मैं कॉलेज पहुंचने के पहले ना मुझे दिमाग में एक चीज़ घुस गई थी कि भाई कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छा फिजिक चाहिए. दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव आई हैड, कि अच्छा फिजिक चाहिए. एंड रनिंग बीइंग वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट, ये चीज़ शुरू की. एंड स्कूल में थोड़ा एथलेटिक था ही, 100 मीटर्स और 200 मीटर्स लॉन्ग जंप वगैरह. नॉट एन ऐसा एक्सपर्ट, बट हाँ 1 2 3 रैंक I could secure. तो कहीं ना कहीं I was athletic, and it of course started from where I was born, Veeraval. काफी wilderness में जिए. Very interesting stuff. Going a little off topic here. Veeraval, Go for it. close to Gir, right? वो एक गिर के टेरिटरी जंगल जो है, है. राइट? जूनागढ़ गिर एक पूरा ये सर्किट है. Hmm. तो इतना इंटरेस्टिंग था हमारा टाउनशिप जहाँ हम रहते थे, उसको सुत्रापाड़ा नाम है, कि शेर और शेर की फैमिली कई बार हमारे कॉलोनी के बाहर आ जाती थी, और रास्ते वस्ते बंद हो जाते थे क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाते थे, और शेरों को तुम भगा नहीं सकते. जब तक वो रास्ते पे बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, और वो जब उनकी मर्जी है तभी वो निकलेंगे. तो आप सोचो, घर के 100 मीटर बाहर शेर की पूरी फैमिली रास्ते पर Hmm. आधी रात को रेस्ट कर रही है, और सारा जितना भी कुछ, वैसे गांव में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता नहीं है, बट लिव्ड इन सच विल्डरनेस. और घर से 2 किलोमीटर आगे ही अरेबियन सी. Hmm. तो रात को लहरों की आवाज, वाह. ओ वाह, आई एक्चुअली इट टुक मी बैक टू दैट प्लेस. काफी इंटरेस्टिंग. सो या अभी अहमदाबाद में ही बसेरा है. तो ये बचपन के जंगलों की वजह से ही, जंगलों के एक्सपोजर की वजह से ही अर्बन टार्जन नाम रखा है आपने उस पेज का. कहीं ना कहीं तो ये कहीं अर्बन ना कहीं ना कहीं तो वो आई डोंट नो, दोस थिंग्स नेवर लीव यू, आई गेस. वो कहीं दब जाती है पर अचानक से शायद निकल के वापस कहीं आती होगी. बट अर्बन टार्जन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये आया दिमाग में. मेरे बाल काफी लंबे थे कुछ सालों पहले. लंबे मतलब इतने लंबे मैं बात कर रहा हूँ, और दाढ़ी वगैरह भी. एंड मैं कुछ सालों से शर्टलेस भी रन कर रहा हूँ. तो लोग तो टार्जन बनाने लग गए थे. तो एक दिन अहमदाबाद में रन करते करते वन ऑफ द रनर्स कॉल्ड मी, हे टार्जन. तो यार इट स्ट्राइक्ड मी कि यार शहरों में रहने वाला टार्जन तो कैन बी कॉल्ड अर्बन टार्जन. तो या दैट्स हाउ द अर्बन टार्जन थिंग वाज बॉर्न. फॉर पीपल हु डोंट नो, It's your Instagram. या इट्स वन ऑफ माय इंस्टाग्राम हैंडल्स आल्सो, अर्बन टार्जन. तो ऐसी मेंटालिटी कह नहीं सकता कि पूरी टार्जन मेंटालिटी है, बट या आई लव लिविंग बिट ऑफ मिनिमलिस्टिक लाइफ. सर्टन ऐसे थॉट प्रोसेस ऐसे हैं Hmm. जो Actually, I wanted to ask you also about Urban Tarzan. What does it mean to you beyond that Instagram page? You mentioned it's a mentality. यस. Is it I is it mean- like an alter ego that people have? Okay. So for example, so there's David Goggins and there's Goggins, okay, right? yeah. There is Mohit Sharma and Mohit Rudra Sharma. So रुद्र का अलग मतलब है कि जब रुद्र वो रुद्र रूप में आता है वो फिर. समझ गया मैं. So, I mean, I see this as a mentality as well. So Vipin is just Vipin. When I say ultra Vipin, and when I'm in that mood, I'm somebody else. So that's what I actually try to live as. But is that an alter ego? ऑल्टर ईगो कह सकते हैं कहीं ना कहीं. ऐसा नहीं था कि अर्बन टार्जन वो मेरे को नाम मेरे हैंडल का रखने के बाद मेरी मेंटालिटी वैसी हुई, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ थी वेयर काफ़ी लोगों को लगता है कि यार मैं बिना टी शर्ट के दौड़ता हूँ क्योंकि मेरे को मेरा फिजिक शो ऑफ करना है. बट दैट्स नॉट द थिंग. क्योंकि जब मेरा फिजिक इतना ग्रेट नहीं था तब से ही मैं शर्टलेस रन कर रहा हूँ. तो जब मैंने रनिंग शुरू की तब ऑफ कोर्स लाइक मेनी अदर रनर्स काफ़ी चीज़ों के साथ मैं दौड़ता था. फॉर एग्जाम्पल आजकल तो लोग वो पहनते नहीं है,
क्योंकि सबके पास सब कोरोस गार्मेंट आ गई है, बट यहाँ पे एक स्ट्रैप लगा के फ़ोन अंदर घुसा के आर्म बैंड यूज़ करते थे, राइट? तो काफ़ी टाइम तक मैंने वो भी यूज़ किया, बट ऑफ कोर्स वो चीज़ भी काफ़ी ऐसे अड़चन बनने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि यार वो मूवमेंट बराबर हो नहीं रहा है हाथ का। तो वो चीज़ एक हटी। उसके बाद बॉटल लेके रन करता था मैं, तो धीरे धीरे हाथ से बॉटल भी निकल गई। और फिर I don't know how exactly T-shirt came off now that I would think about it. But I think ये प्रोसेस पूरा एकदम नेचुरल और ग्रेजुअली था मेरे हिसाब से। एंड टी शर्ट के बाद भी ऐसा भी नहीं, कई लोग मेरे को पूछते कि अपने निपल शैफिंग होता है तेरे को रन करते समय, इस वजह से तू टी शर्ट नहीं पहनता है। बट आज तक मेरे को टच वुड इन 12 years ऑफ रनिंग नेवर वंस मेरे को निपल शैफिंग कभी हुआ है। बट बस वो चीज़ हो गई एंड नाउ आई genuinely can't run with an armband or run with like a hydration vest or run with a bottle in my hand or run with a t-shirt. I mean मेरे को लगता है कुछ भी अगर मैंने एक्सटर्नल लगा नहीं तो वो फ्रीइंग फीलिंग है ना टू बी आउट देयर, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी। सो कान में मैंने आज तक ईयर प्लग्स भी मैंने लगा के रन नहीं किया। इफ एवर आई वांट टू लिसन टू म्यूजिक वाइल रनिंग, फोन मेरा हमेशा हाथ में रहता है और मैं स्पीकर पे गाने बजाता हूँ। तो वो हल्की हल्की अगर आवाज आ रही है मुझे तो ठीक है, बस बढ़िया, पता है गाने बज रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। तो हाँ, ये चीज है। कभी कभी लगा लिया करो यार, पॉडकास्ट सुन लिया करो। But सही है। 96 पॉडकास्ट, हाँ, काफी 2-3 महीना निकालना पड़ेगा अभी। अच्छा, बट हाइड्रेशन, हाउ डू यू मैनेज योर हाइड्रेशन स्पेशली इन लॉन्ग रन्स? बिकॉज आई नो गाड़ी हर बार नहीं चल सकती है आपके साथ। नहीं, right? जरा भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। और अहमदाबाद में जब गर्मी होती है तो भयंकर गर्मी होती है। And और from performance point of view and even from health point of view, your body gets severely dehydrated in these conditions. Correct. And let's say you're doing like a 24-kilometer run, आपको चाहिए यार पानी। नहीं, हाँ, वो जब 24 किलोमीटर आवर की बात कर रहे हैं तब तो चीजें ऑफ कोर्स 24 hour नहीं, 24-kilometer run. 24 किलोमीटर, सॉरी माय बैड, 24 किलोमीटर। हाँ, तो आई थिंक जब मेरे को तब ऐसे प्यास लगती है तब ऑफ कोर्स आई एम रनिंग इन द सिटी, तो दुकानें खुल जाती है या कहीं बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन रहते हैं तो उनसे मैं एक गिलास पानी मांग लेता हूँ, उनकी बॉटल से एक आध सिप। ऐसे रनिंग के वक्त इतना पानी चाहिए नहीं, मतलब इफ़ यू जस्ट गेट 2-3 सिप्स आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ। बट विपिन, नॉट टू ब्रैग, काफ़ी लोग मेरे को टोकते भी इस चीज़ के लिए कि भाई समटाइम्स मैंने पोस्ट स्टोरी में बोलता हूँ कि यार भाई 15 किलोमीटर्स आज रन किया, आई डिडंट स्टॉप, आई डिडंट ड्रिंक वाटर। मैं जब ऐसा स्टोरी पे मेंशन करता हूँ तो कई लोग मेरे को रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि भाई कोई That's not ideal. प्राउड होने actually. की बात नहीं है कि भाई तू ऐसे लिख रहा है कि बिकॉज यू आर मिसलीडिंग पीपल कि भाई अगर रेस दौड़ रहा है तो मैं भी कभी बिना पानी के रन करूँ। आई अग्री, एब्सोल्युटली, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। बट ये भी तो बात हो सकती है ना कि आई एम कीपिंग माई बॉडी सो हाइड्रेटेड दैट आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर। एक नीड आ जाती है बॉडी को कि भाई मेरे को पानी की शायद जरूरत है। नहीं, बॉडी तो जैसा कंडीशन करोगे वैसी आदत डाल लेगी वो ठीक है। बट द इफेक्ट्स लॉन्गर टर्म में बी लाइक इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, आई थिंक। सो क्लियरली रिकवरी आपकी स्लोअर होती है, रिकवरी बेटर हो जाएगी इफ यू लेट्स से ड्रिंक ड्यूरिंग द रन। Keep sipping Advisable water, is yeah. because I work with a fitness company and we advise people on like run with electrolytes as well in hot weather. तो ये आइडियल तो यार यही है, कोचिंग और उन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही Point of, I totally agree. but we're talking about a lifestyle and a mindset which you're doing, like that thing itself is so attractive to you, like being minimalistic and being without anything. Is that, and in any case you're not chasing medals or timings or anything. ये Like थोड़ा, they may be a personal goal or हाँ, करेक्ट, क्योंकि अब मिनिमलिज्म की बात करें तो ऐसा नहीं है, मैं भी सब ब्रांडेड चीजें पहनता हूँ, कपड़े वपड़े सब बढ़िया है। बट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन एस्पेक्ट्स इन लाइफ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें थोड़ी चेंज हुई। ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट इनटू कॉलेज, हम कॉलेज की बात कर रहे थे कि मैं हाउ डिड आई गेट इनटू फिटनेस, तो आई वांटेड अ ग्रेट फिजिक, तो उस वजह से रनिंग बीइंग द चीपेस्ट फॉर्म, राइट, वर्कआउट, आई गॉट इनटू इट, और उसके बाद आई गॉट हुक टू इट अगेन, तो अगेन वो प्रोसेस ऐसा था कि मैंने सारे पैतरे अपनाए जो सारे रनर्स करते थे, 10-10, 12-12 हज़ार के जूते 2010-12 में, और जितना बजट में सब रहता था मम्मी दिला देती थी। तो वो सब चीज़ें की, और आई थिंक जितना अब इतने सालों में वो सारे शौक जो थे वो चीज़ों के, वो रियलाइज़ होने लगा कि यार इट्स नॉट ये चीज़ें परफॉर्मेंट एनहेंसर्स की तरह आप ऐसे दिमाग में वो चीज़ बिठा नहीं सकते कि अगर मेरे पास अच्छे जूते हैं तो ही मैं दौड़ पाऊंगा।
राइट? और अगर ये चीज़ मैं खा पाऊँगा तो ही मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। आपने जैसे बोला इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग, Yeah. तो उस हिसाब से आई हैव हैड माय ओन जर्नी। Yeah. बहुत एक्सपेरिमेंट किया है मैंने अपनी बॉडी के साथ, एंड नाउ रीच्ड अ स्टेज वेयर I haven't worn running shoes in years now, and I don't consume supplements. I don't consume any sort of hydration gels during runs. तो एक वो मेरा एक ईगो भी बन गया है कि यार कि I want to kind of do it very naturally. I don't want to have any sort of external, unnatural supplements going into my body. Processed and chemicals and all of that. There's no harm, but वो मेरा एक अलग सा ही वो बन Hmm. गया है कि नहीं मुझे नहीं करना है, जितना Yeah. हो सके I would want to keep it natural. No, I admire that. Like, there's nothing wrong with that entirely. It's actually wonderful. It's actually better to run natural completely. It's just that if you let's say tomorrow you develop an ambition to run for Team India, qualify for Team India in 24 hours team, that's when you will probably need supplements and stuff Of like course, that. the intensity of I think Yeah. training would go so high that I will have Yeah. to. Yeah. अभी शायद इतना intense नहीं है, Right. तो फिर So maybe I it's can glad. just. I'm actually very curious also. We learn more about it from you. So please, so I think this is a good segue podcasting language, into your lifestyle. So let's talk about barefoot running. How did that happen to you? Credit goes to मिलिंद सर, जिनके साथ मैंने 5 साल उनकी कंपनी पिंकाथॉन में काम किया था। तो बीइंग विद हिम, स्पेंडिंग टाइम विद हिम, ऐसा नहीं है कि यार बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है पर वो ऑफिस में आ रहे हैं, हर सिटी में जब पिंकाथॉन हो रहा है तो हम उनको मिल रहे हैं, और ऑफ कोर्स व्हेन यू सी हिम अप क्लोज यू काइंड ऑफ नोटिस कि भाई एक सेलिब्रिटी कैसे जीता है, क्या कर रहा है। तो इनिशियली तो ऐसा ही था। But that's a very different kind of celebrity because that's not how celebrities live usually. Of course, that's not how celebrities live. But Yeah. again, it's the Milind Soman there. Yeah. तो initially जब of course का पिंकाथॉन join किया, तो slyly, closely monitoring him, how he lives, what he eats, ये वो फलाना ढिमकाना, तो देखते ही थे यार वो कभी इंसान जूता नहीं पहन रहा है, वो सैंडल पहन रहे हैं। तो सैंडल के बारे में पता लगा तो पता चला भाई 12-13 हज़ार के तो सैंडल है। तो तब तो ऑफ कोर्स हुआ कि भाई वो सैंडल चाहिए मुझे भी, पर वो बजट नहीं है उतना, भाई सैंडल, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था दिमाग में कि 12,000 का सैंडल कैसे पहन सकता है इंसान। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू स्पेंड टाइम, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, हमने साथ में रन किया, राइट? तो आई एज एन एम्प्लॉय एट पिंकाथॉन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ माई बॉसेस पर्सनल रन क्रू। तो दैट्स व्हेन ऑफ कोर्स यू आर इन सच एन इंटीमेट सेटअप. When you're running together, you're traveling together, you talk about so many things. I mean, I think वो एक running के टाइम है ना, वो इंसान की असलियत पूरी सामने आ जाती है, right? There is no double-faced person there, जो जिस तरीके से वो है वो दिख जाता है। तो yes, of course, उनको देखकर ही इंस्पिरेशन आया barefoot running का। और मुझे लगता है like in a lot of aspects I see a lot of millions impact in your life. Like I think in probably eating as well and living natural as well. Isn't it? barefoot तो yes, but eating naturally कह सकते कहीं ना कहीं, मे बी शायद मैंने मतलब यार, दिमाग में 5 साल आप किसी के साथ रहते हो ना, चाहे वो काम पे, and you spend a lot of time at work. Probably sometimes more than your family, you spend time with your colleagues, That's right? true. And 5 साल है तो बहुत सारी चीजें imbibe भी करते हो आप, तो वो imbibe फॉर श्योर, मतलब शायद मैं ये चीज मैंने इस तरीके से consciously ना, नहीं किया होगा हाँ शायद। कॉन्शियसली मैंने नहीं सोची होगी कि भाई हम्म। मिलिंद ये करता है तो मैं करूं, बट शायद Right. कहीं ना कहीं मैंने वो देख रखा है, इतना सुन रखा है, Right. तो शायद वो चीजें नेचुरली अपने आप वो चीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर हम कहाँ रन कर रहे थे, ये बात थी, ये श्रीलंका का ही रन था, जब वाइल सिटिंग इन द कार रन के बीच में ब्रेक में मिलिंद को आई थिंक कुछ प्रोटीन बार खाना था, और वो रैपर खोलते खोलते वो पूरा प्रोटीन बार सड़क पे गिर गया, राइट? और हल्की सी उस पर धूल लग गई। तो अंकिता भी थी बाजू में, तो अंकिता ने बोला, जब मिलिंद उठा के उसको वापस खाने लगा, साफ करने लगा, झटकने लगा, तो अंकिता ने रिएक्शन दिया कि भाई क्या कर रहा है, फेंक दे इसको। तो मैं बोला क्या है, नीचे तो गिरा है, हल्का सा साफ किया, एंड ही एट द एंटायर थिंग, राइट? मोस्ट ऑफ अस व्हाट विल डू इज अगर गिर गया तो काफी लोग तो फेंक देंगे कि भाई ये तो बिगड़ गया है,
क्योंकि लोग कितनी- दिमाग में बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना, हाँ जैसे कि गिर गया है तो फिर यहाँ पे और किसके पैर आए होंगे, पहले क्या-क्या गिरा हुआ होगा सड़क पे, वो एग्जैक्टली। सब कुछ इस पे लग चुका है एंड बट दैट्स तुमने जस्ट अब ओवरथिंकिंग। तब तुमने एक ऐसे इंसान को देख लिया करते हुए, हाँ, तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में, देखो इतने साल पुरानी बात है पर दिमाग में अभी भी चिपकी हुई है। सो यू आर राइट कि मैंने कॉन्शियसली शायद वो चीज़ नहीं की होगी, राइट। बट ये सारी चीज़ें इम्बाइब हो गई और वो कहीं ना कहीं दिमाग में रही है। उस वजह से एंड आई टेकन मे बी टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दैट थिंग एंड नाउ इट्स Yeah. So barefoot happened. That's how barefoot happened to you. करेक्ट। But tell me, how do you feel when you run barefoot? Like, what is the difference that you feel in running barefoot versus running in shoes? रनिंग शूज में भी अच्छा ही सब चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Hmm. इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड डूइंग barefoot रनिंग। बट विपिन वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी भाई ट्रांजिशन कैसे हुआ। ट्रांजिशन भी बहुत प्यारे तरीके से हुआ था, ऐसा नहीं था कि भाई एक दिन मन किया दौड़ने का, चलो निकल गए रास्ते पे। तो ऑफ कोर्स मिलिन था तो उसकी बातें भी सुनी थी कि भाई हाउ gradual transition should happen if Yeah. you want to go barefoot. Yeah, start तो with walking. start maybe. with walking, different surfaces, grass, clay, सड़क हो गई, hard surfaces, घर में एकदम barefoot रहने की आदत डालो। तो वैसे ही मेरा gradual process था। And when I was comfortable, जब I went out for my first run, I think कुछ 2-2.5 किलोमीटर का रन प्लान किया था घर के पास में ही। I'm not even kidding, not exaggerating, that first run itself, भले वो 1-2.5 किलोमीटर का था, बट हैड सच एन इम्पैक्ट ऑन द एंटायर पोस्चर। मतलब ऐसा नहीं था कि एक कॉन्शियसली वो पोस्चर चेंज नहीं हुआ, इट ऑल हैपेंड नेचुरली Yeah. एंड इट फेल्ट सो डिफरेंट। मेरे लिए तो बहुत वो आश्चर्यचकित बात आज टिल डेट तक है कि हाउ द वो पोस्चर करेक्शन कैसे हो सकता है। मतलब तुम जूते में दौड़ रहे हो, उसके बाद अचानक से तुम जूते निकले, तुम दौड़ना शुरू किया, तो तुम्हारा बैक स्ट्रेट हो गया, तुम मतलब सब चीजें एकदम बढ़िया हो गई अचानक से। Right. एंड विदाउट हैविंग टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू, देन ऑफ कोर्स वो तो था ही काफी सरप्राइजिंग मेरे लिए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ years started reading about it, तो वो काफी नेचुरली था। इट्स ऑल साइंटिफिक कि भाई So tell us some more about barefoot. When you started running, and what changes did you feel? So posture हो गया correct. पोस्चर करेक्शन हो गया उसके। Is it good for you? You think? आई लव इट। Yeah. अब द वे आई रन नाउ विपिन, आई एब्सोल्युटली लव। मैं कहना भी चाहूंगा कि मैं आई एम बिट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड थोड़ा वो ईगो भी आता है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इम्प्रूव्ड माई रनिंग पोस्चर सो मच। लोग ऑफकोर्स अपने टाइमिंग वगैरह की बात काफ़ी करते हैं कि मैं इतना दौड़ लिया, उतना दौड़ लिया, बट हाउ यू आर रनिंग इज़ वॉट पीपल डोंट यूजुअली टॉक अबाउट। पर मेरे को ये शुरू से चीज़ बहुत दिमाग में थी कि हाउ एक ऑफ कोर्स लुकिंग एट कैनियंस और लुकिंग एट अदर एलीट एथलीट्स, आप देखो तो उनके बॉडी दे आर इन सच अ Form. शेप Yeah. एंड फॉर्म। एंड मोस्ट ऑफ अस आई थिंक मैंने भी जब रनिंग शुरू किया था तो इतना कुछ फॉर्म का कुछ आइडिया नहीं था। तो बैक थोड़ा झुका हुआ है, हाथ कैसे भी जा रहे हैं। Yeah. तो वो चीज़ जब काफ़ी नॉलेज आया तो आई डेफिनेटली काइंड ऑफ वेरी कॉन्शियसली tried improving all of that. Right. So proud of the fact that I feel that I run In a very good form. beautifully. If I see myself, इसलिए मैं ना अपने आप को दौड़ते हुए रिकॉर्ड बहुत करता हूँ, कैमरा कहीं रख देता हूँ, और अपने आप को मैं हर तरीके एंगल से, मैं इनिशियली बहुत रिकॉर्ड करता था कि कैमरा कहीं रख दिया रास्ते के पीछे, स्लो मो भी रिकॉर्ड करूंगा अपने आप को, और नॉर्मल उसमें भी रिकॉर्ड करूंगा, एंड आई सी माई सेल्फ कि मैं कैसे रन कर रहा हूँ। राइट, आई थिंक ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड देमसेल्व्स व्हाइल रनिंग and see how they run. I agree. You will know. और स्लो मो में तो स्पेशली आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ लैंडिंग हील हो रहा स्ट्राइक है? हो रहा है, आपका पहले टो लैंड हो रहा है या मिड फुट है, जो भी है। आई थिंक इट्स सच एन आई ओपनर फॉर एनीवन इफ दे ट्राई दिस। And such an underappreciated thing also. Like not everybody does it. खर्चा करना ही नहीं है, खाली कैमरा लगा दे। Like, exactly. Yeah, people don't. But it's too good. I think everyone should do it. तो barefoot तो it has changed my life. I mean, इतने सालों से मैंने जूते नहीं पहने, मेरे जितने भी पर्सनल बेस्ट हाफ मैराथन्स में हैं, जितने भी लंबे रन मैंने किए हैं, दे आर मोस्टली barefoot और इन मिनिमलिस्टिक शूज। इधर वो barefoot socks हो गए, barefoot सैंडल हो गई। तो और लोग बहुत क्वेश्चन रहते कि कैसे करता है भाई, पर मैं वही बोलता हूँ इट्स ऑल अबाउट कंडिशनिंग। एक बार शुरू करो, एक बार आपको Yeah. वो डिफरेंस पता चल गया ना, तो आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू इट। एंड इट्स अ जर्नी विद मोस्ट ऑफ द बेयरफुट रनर्स यार। आप बेयरफुट मल्लू की बात कर लो, आकाश की बात कर लो,
आप वो बॉबी बेयरफुट की बात कर लो, जो इंसान 4.5 की पेस पे बेयरफुट रन कर लेता है, insane. I think it's all about conditioning. लोग डरते हैं, Bobby is but blazing. Yeah. yeah. I agree with all that you said about barefoot. The impact that you're talking about, I also felt that exactly. I remember now when I had tried running barefoot for a bit. The first few things that I noticed were these. Like first one was impact. So बोलते हैं कि soft landing होनी चाहिए, धाड़ धाड़ पैर को नहीं मारना है, right? जूता है, इतना cushion है, you won't feel anything Exactly. कहीं पे, right? So वो जो soft landing बोलते हैं, आप एक बार नंगे पैर जाओ. अब वो कंकड़ पत्थर इतने सारे हैं, you're wary of them in the beginning, right? So you don't want to step on this anything very hard. So landing goes soft So, automatically. automatic. Your body's Automatically, response to kind right? of save it from a Yeah. trouble down there. Yeah. That's true. Exactly. And also I think another one, my cadence improved a lot. Cadence like आप लॉन्ग स्ट्राइड नहीं करोगे, आपको हील स्ट्राइक करनी ही नहीं है. Correct. और जब भी हील स्ट्राइक आप करते हो तो आपको बेयरफुट में सीधा यहाँ तक फील होता है पूरा, लाइक ये बॉडी सिग्नल जाता है कि ये गलत स्ट्राइक हो रहा है. Correct. राइट. Sensation पूरा पीछे तक. You can Sensation. feel it Exactly. coming. which and that impact is happening when you're wearing a shoe as well, but you just don't feel it. Correct. Because there's cushion and that signal does not go. Correct. Right. But impact on your knee and the rest of the body is happening because of the wrong strike. Correct. I'm not talking about heel strike being bad, because the bulk of the runners in the world are heel strikers. But I think barefoot running improves that a lot. Like it helps you land in under your body. So form improvement तो definitely बहुत ज़्यादा होती है. ये तो है. आपने केडेंस वगैरह की भी बात की, एब्सोल्युटली. वो तब उस वक्त याद नहीं आया. बट आप ये में कोई चीज़ बताओ, बेयरफुट रनिंग के बाद ऑफ कोर्स आपने फिर जूते पहन के भी रन किया होगा. सो यू बीइंग अ बेयरफुट रनर, मेरे को एक चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि मैंने भी बेयरफुट रनिंग करने के बाद काफ़ी साल आई हैव ट्राइड वेयरिंग शूज़, मतलब शूज़ पहन के रन किया है, बट शूज़ पहनने के बाद भी मेरा पॉस्चर वही रहा है जो बेयरफुट रनिंग के टाइम रहा है. तो मेरे को लग रहा है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जब बेयरफुट रन कर रहे हो तभी पॉस्चर करेक्ट है, बट आई थिंक वो एक बार समझ लेती है बॉडी, उसके बाद आप शूज में भी जाओगे तो बॉडी वैसे ही फंक्शन करने वाली है, इन माय ओपिनियन, जो मैं एक्सपीरियंस किया. आई डोंट नो इफ यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग. I agree totally, absolutely, totally rude. That's definitely true. थोड़ी okay, गंदगी की बात कर ले. मैं वही कहना चाह रहा था कि हाँ. ये एक एस्पेक्ट जो रोकता है लोगों को बेयरफुट करने से, which is गंदगी. Like I said, people imagine all kinds of things and like सफाई फ्रीक होते हैं लोग. मेरी वाइफ है, मेरे को तो मतलब देवेंद्र को पता किस हद के हमारे बहस होती है सफाई को लेके, इन चीज़ों को लेके. ऑल्दो वी वर ऑल वेरी क्लीन, मैं भी बहुत साफ सफाई से रहता हूँ, बट वो तो जर्मोफोबिक लेवल की सफाई की आदत है उन्हें. सो इमेजिन करो उस तरह के लोग जो सड़क पे आप बेयरफुट के लिए बोल रहे हो, बोल रहे हैं पान थूका हुआ है लोगों ने और किस तरह का गंद पड़ा हुआ है, और रियल सेफ्टी हैजर्ड्स लाइक कांच पड़ा हुआ है टूट के. क्योंकि रात को 4 बजे जो लोग पब से निकल के बोतलें फेंक के जाते हैं कि एंड दे मेक श्योर कि टूटे जरूर. टूटी नहीं है तो मजा नहीं आएगा. आवाज नहीं आई है तो क्या फेंका तूने यार, ये वो टूटी हुई हो जरूर वो. और उसी रोड पे हम लोग रन करते हैं. और मेरे तो साइकिलिस्ट का ज्यादा डर लगता है, क्योंकि लेट्स से यू हैव अ रोड बाइक एंड यू आर स्पीडिंग एंड लाइक इट्स अ स्पीड राइड और व्हाटएवर. यार कितने बुरे गिरोगे यार आप, क्या हालत होगी आपकी. मेरे तो रनर के तो पैर में ही लगेगा, ठीक है भैया पट्टी बंधवाई कुछ टाइम, आपको तो किसी लेवल का एक्सीडेंट हो सकता है साइकिल पे. तो सो ऑल दोस हैजर्ड्स आर देयर. आप तो फिर भी ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ अल्कोहल लीगल है. मैं तो शुरू से गुजरात में रहा हूँ, ड्राई स्टेट. राइट. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम डबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि कांच का डर तो है ही है, उसके अलावा जो रेगुलर कचरा जो हर सिटी में रहता है, पान मसाला और जो भी कुछ रहेगा, ये चीज़ तो अहमदाबाद में कांच वाँच की वैसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. कचरा तो हर जगह रहता ही है, बट पान मसाला जो है, क्योंकि मैं स्ट्रेचेस ही ऐसे यूजुअली वो करता हूँ जहाँ पे कचरा वचरा कम हो, बट पान मसाला इसके अलावा दूसरी चीज़ें वो मेरे को बहुत बॉदर करती है, सच बताऊँ तो. और मेरे आए दिन लोगों से झगड़े होते रहते हैं. इफ़ आई सी देम स्पिटिंग या कोई कचरा फेंकते हुए थ्रू आउट द डे, मैं लड़ पड़ता हूँ. तो ये चीज़ तो मेरे को बहुत बॉदर करती है. और मैं जुहू बीच पे, एक्चुअली मैं बॉम्बे भी काफ़ी जाता रहता हूँ, तो मैं जुहू बीच पे बहुत बाल बच गया था मैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप रन कर रहे हो, टाइड लो है, पूरी रात की लहर वो काफ़ी चीज़ों को मिट्टी में दबा देती है. लकीली मेरी नज़र नीचे पड़ गई, वो कांच का एक टुकड़ा मिट्टी से बाहर निकला हुआ था. इतना समय बचाऊं. तो डर तो कॉन्स्टेंटली बना ही रहता है कि भाई कब क्या आ जाए पैर में, और दैट कुड काइंड ऑफ मे बी पुट एन एंड टू योर, you never know how on the extreme end, yes, it's
possibly can सो do दो that. चीज तो, एक तो वो हाँ. वो चोट लगने का डर, और हम्म. दूसरा वो एक Hmm. वो गंदगी से एक जो घिन आती है, Yeah. Yeah. बहुत But those are not enough to deter you from this. Like they're not enough नहीं, to अब stop you from अब running नहीं, अब barefoot. वो ज़्यादा चीज़ें बॉदर नहीं करती है अब तो। मतलब इतना कॉन्शियस वाइल रनिंग रहते हैं कि वी काइंड ऑफ डिच यू नो दोज डर्टी पार्ट्स एंड जस्ट कैरी ऑन। एक बार अब रन करना शुरू कर दिया आपने, तो फिर वो आप अलग धुन में चले जाते हो, फिर एवरीथिंग एल्स टेक्स ओवर। बट कॉन्स्टेंटली इस वजह से है ना, मैं अगर रनिंग के टाइम अगर ये चीज़ पे मैं गुस्सा ना करके मतलब तब इट डजंट सैड हो जाता हूँ अगर मैं वो कचरा वचरा दिख गया। बट थ्रू आउट द डे जो व्हेन आई सी पीपल ना, तब मैं उनको रोकता हूँ। मेरे को लगता है कि अपने 2 जन को भी रोकूंगा ना, तो अगले दिन मेरे को शायद साला 2 गुटखे की पिचकारी कम दिखेगी रास्ते पे। मेरा ऐसा मेंटालिटी है। Hmm. तो कम आपके भी दिखती है? यही? हाँ, कम दिखती है, फर्क पड़ता है. नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, But बट at least एटलीस्ट ट्राइंग you feel फ्रॉम like you're माय doing एंड। your या bit. एग्जैक्टली। Yeah, yeah. सही है यार. You run backward also. Backward looks like a gimmick, and that's what most people would say कि भाई क्यों, क्या जरूरत है, this is just show off or whatever, right? मुझे तो But बहुत मजा आती है जब लोगों के रिएक्शंस देखने और सुनने मिलते हैं बैकवर्ड रनिंग। yeah. टू मच फन। कोई सीक्वेंस नहीं है मेरे पास क्वेश्चंस का, बट बिफोर आई फॉरगेट, जस्ट टेल अस अबाउट रिएक्शंस ऑन द रोड. सब barefoot कर रहे हो, bare chested कर रहे हो, you're not wearing a t-shirt or anything, right? You're running topless, barefoot, long hair, nose pin. What are some of the best reactions or the worst reactions that you've got on the road? Memorable things or like really weird or सोच में डाल दिया आपने। ऐसे छोटे मोटे इंस्टेंसेस तो बहुत है, हाँ. पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी So है। एक आधा पॉजिटिव बता दो, एक आधा नेगेटिव बता दो. पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, हाँ हाँ. क्या एक मिनट सॉरी। ऑफर्स आ जाते हैं बंदियों के नहीं सड़क नहीं, पे. ऑफिस तो कुछ ऐसे आते नहीं है। बट हाँ. इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें अब आपने अपने पॉइंट आउट करने बोल दिए, तो मेरे को अचानक से ऐसे याद नहीं आ रहा एट दिस पॉइंट। बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई बीन स्टॉप्ड बाय पीपल रन के बीच में, Yeah. कि इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई वाई आर यू डूइंग दिस, स्पेशली व्हेन इट्स बैकवर्ड। तो भाई रुक जा भाई, क्यों, क्या हो रहा है ये। तो वो वाले एक्सट्रीम केसेस जहाँ मेरे को रोक कर पूछेंगे स्पेशली कि भाई बता क्या है। और वैसे तो लोग गाड़ियाँ रोक के फिर देखने लगेंगे, कोई बहुत अच्छी चीज़ बोलेगा कि भाई वेल डन, क्या कर रहे हो, गजब की चीज़। कई लोग ऐसी कमेंट पास करके जाएंगे और पागल वागल हो गया है, या कोई गिगल करके जाएगा, हंस के जाएगा, इशारे करेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत होती है। बट जब लोग जो रोक के पूछते हैं, मैंने गेट टू नो कि भाई मैं कितना दौड़ने वाला हूँ या कितना दौड़ रहा हूँ उल्टा, तब उनका परसेप्शन ही एकदम चेंज हो जाता है। Right. और शर्टलेस की अगर मैं बात करूँ, विपिन, गुजरात में हूँ मैं, वहाँ मेरे को ऐसे लगता भी एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, थोड़े से लोग कंजर्वेटिव है, तो मेरे बहुत आए दिन लोगों से झगड़े होते हैं। I see the stories. आप देखते हो राइट। हम्म। तो आए दिन मेरे ऐसी बहसबाजी वो होती रहती है सड़कों पे, जहाँ मेरे को कोई पास होते बोल देगा कि भाई, कई कई लोग गाली दे के निकल जाते हैं कि भाई कपड़े वपड़े पहन के निकल। कई लोग कुछ भी रैंडम चीज़ें बोल देंगे, एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन अहमदाबाद ऑल्सो हु अप्रिशिएट। तो एक बैलेंस क्रिएट होता है, इस वजह से आई एम हैप्पी। अगर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव होता ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि डजंट इम्पैक्ट मी। कहीं ना कहीं दिमाग में वो गुस्सा आता है। इट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम नॉट वेयरिंग अ टी शर्ट। मेरे को और वो रेबेल करता है कि अब तो साला मैं और जाऊंगा और ऐसे इलाके में जाऊंगा शायद जहाँ लोगों को और आपत्ति हो। तो हम्म। इट्स अ फ्री कंट्री एंड वी और शुड अपनी बी। सभ्यता के बारे में कितने लेक्चर्स मिलते हैं रन पे? बहुत बहुत, हाँ। अरे हमारे ये बड़ा कल्चर नहीं है। ये तो मेरे घर के सामने ही एक गार्डन है, म्युनिसिपल गार्डन, वेरी प्रिटी, वेरी छोटा सा है, और सालों से मैं और मम्मी जा रहे हैं वहाँ पे। तो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, और मेजॉरिटी क्राउड है ओल्ड पीपल जो रहेंगे, आई थिंक 50 to 60 या लेट 40s से 670s के एज ब्रैकेट वाले। तो वहाँ पे ये RSS की शाखा लगती है, राइट। तो पहले जब मैं गार्डन में इनिशियली बिना टी शर्ट के जाने लगा, मैं ऐसे घुसता नहीं हूँ बिना टी शर्ट के गार्डन में। यूजुअली मैं अपना सामान गार्डन में रखता हूँ, सुबह रन करने निकलता हूँ, और रन से जब रिटर्न आता हूँ मैं, देन आई एंटर द गार्डन शर्टलेस,
and I have to cross a certain section to reach where I have kept my stuff so that I can go freshen up और टी शर्ट डाल के फिर मैं गार्डन में मेरा वो कूल डाउन करूँ. तो उस बीच में ही जब मैं वो चल के जाता हूँ उस स्पॉट में, तो 2-4 बार उन अंकलों ने देखा होगा और मेरे को पता चल गया कि शायद मेरी बातें कर रहे हैं ये लोग. और एक दिन मेरे घुसने के पहले ही उस सब शाखा वालों ने, आरएसएस वालों ने मेरे को धर लिया गेट पे ही. देयर वर अबाउट 10-12 men और मेरे को बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया कि भाई ये टी शर्ट के बिना नहीं आ सकता अंदर. मैंने बोला कहाँ ऐसा रूल बुक में लिखा है गार्डन की या सिटी की कि मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ. तो बोलते हैं कि ये कोई सीरी सभ्यता है, ये तेरे को तेरे परिवार ने ऐसी परवरिश दी है कि तू ऐसा करेगा, यहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं, तो ऐसे घुस रहा है. मैंने बोला मैं गार्डन में इतना मैं खाली अंदर जाके मैं पहन लूंगा. तो बोलते तेरे को इस गार्डन के अंदर एक स्टेप भी नहीं आना है बिना टी शर्ट पहने. तो हर कहीं अंकल कहाँ कहाँ पहुंच गए, परवरिश पे पहुंच गए, सभ्यता पे पहुंच गए, इंडियन कल्चर पे पहुंच गए. तो उस गार्डन के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है, उस गार्डन के अंदर एक बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, जहाँ पे पूजा करते हैं लोग, आके जल चढ़ाते हैं. तो वहाँ पे सुबह में कुछ अंकल्स भी आते हैं जो सिर्फ धोती पहन के आएंगे और ऊपर एक छोटा सा उनका कपड़ा रहेगा. उनको कोई कुछ नहीं बोलता है. क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए आ रहे हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं. पर मैंने इसका वहाँ सभ्यता खराब नहीं होती. वहाँ सभ्यता खराब नहीं होती है. पर मैंने ये चीज, ऐसा मेरा मानना है, मेरा लॉजिक है ये, कि अगर इफ यू सी अ मैन who doesn't have a great physique and if he's running or if he's roaming around shirtless, it's not a problem. But if you see somebody who has a great physique and is roaming around shirtless in a city or maybe run के बाद खाली टी शर्ट अगर निकाला, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग एंगल आ जाता है. सबको लगता है कि भाई Why do you think that is? मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान शायद शो ऑफ कर रहा है. मे बी इनसिक्योरिटी है, किसी की वाइफ्स या किसी की डॉटर शायद गार्डन में हो, मेरा ऐसा मानना है. तो व्हाई आर दे नॉट स्टॉपिंग दोज अंकल्स हु आर कमिंग, जो जल चढ़ा रहे हैं पेड़ पे, जिनका पेट थोड़ा निकला हुआ है, और मे बी ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है. तो ये चीज है. Yeah. I don't know what that is, but yeah, trouble तो बहुत रहेगा ही यार, तुम लोग जो कर रहे हो उसमें. ये I can totally imagine uncles doing. नहीं, बट ये doing हाईरॉक्स that, की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हाईरॉक्स ऐसी जगह है ना जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेन यू विल सी शर्टलेस. Yes, that's amazing. वहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वहाँ आप टी शर्ट के साथ अगर कर रहे हो आपका, तो आपकी फोटोज कम आएगी. ऐसा लगता है मुझे. It's fun. It's coming from the poster boy of Hyrox. अरे कहाँ पोस्टर बॉय, गॉट जस्ट लकी कि उनने मेरा पोस्टर पे फोटो लगाया. बट आते हैं Hyrox की बात करते हैं. Just let's wrap this one. Yes. So yeah, so these kind of incidents बहुत होते रहते हैं. अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव्स है, अप्रिशिएट भी लोग बहुत करते हैं. ठीक है. तो अगेन आई एम सेइंग इट्स अ गुड बैलेंस. Sure. So let's talk about let's wrap the backward point. Why did you have to run backwards? Why did you do it? Okay, quickly. You're one of the very few people in the world who do it, right? वर्ल्ड कह सकते हैं. मैं वर्ल्ड तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ. जब मैंने बैकवर्ड रनिंग करना शुरू किया और जब मैंने फर्स्ट मेरा हाफ मैराथन बैकवर्ड किया, तब मेरे को लगा मैंने कुछ उखाड़ लिया है. तब मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि भाई इंडिया में एक्चुअली कितने बैकवर्ड रनर देखे, तो आई कुडंट फाइंड लिस्ट ऑफ एक्टिव रनर्स हु डू इट. मेरे को कुछ पास्ट के ऐसे रिकॉर्ड्स मिले जहाँ लोगों ने बहुत बैकवर्ड रन कर रखा है इंडिया में. अच्छा. मैं भी इस चीज को हाईलाइट करूंगा एक्चुअली. बट बैकवर्ड रनिंग शुरू हुई 5 years इनटू रनिंग. ओके. जहाँ मैं 5-6 साल ऑलरेडी रनिंग में था, एंड आई वाज रनिंग सो मच. और तब नॉलेज नहीं थी. अगेन व्हेन यू गेट इनटू समथिंग, अगर आप स्मार्ट हो तो सारी चीज़ों का ज्ञान इकट्ठा करके यू विल डू थिंग्स स्मार्टली. बट मैं सिर्फ दौड़ रहा था, राइट. इसको देखा कि ये इतना दौड़ रहा है, चल भाई कल मैं जाके इससे 2 किलोमीटर ज्यादा रन करूंगा. ये इतने में कर रहा है, अरे मैं इससे ज्यादा तेज दौड़ूंगा. तो उस देखा देखी के प्रोसेस में आई इंजर्ड माई सेल्फ, एंड इट वॉज रनिंग बैकवर्ड्स. नहीं, रनिंग फॉरवर्ड. तो वो रनर्स नहीं, मोस्ट कॉमन इंजरी, कार्टिलेज वीक हो गया because of excessive running. I was doing too many miles in too less time. I was running too fast, right? And zero strength training. Like a perfect recipe of injury. और वो चीज़ हो गई. और मेरे को तब तो आइडिया ही नहीं कि भाई ये रनर्स नहीं है क्या. आई कुड फील अ क्रेजी अमाउंट ऑफ स्टिफनेस. मैं जैसे बैठा हूँ अभी फोल्डेड लेग्स, मैं 1 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता था क्योंकि उनको दर्द होने लगता था.
तो आई वेंट टू द फिजियो. उसने बोला कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, यू विल हैव टू स्ट्रेंथ ट्रेन, यू हैव टू आपको आपकी ये लेग की मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि नी पे कम इम्पैक्ट आए वाइल रनिंग और डूइंग एनी एक्टिविटी. तो मैंने फिजियो शुरू किया, फिर मैंने हल्का हल्का जिम भी शुरू किया. और उस बीच मेरे को पता चला बैकवर्ड वॉकिंग के बारे में, क्योंकि आई कुड सी एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम पोस्टिंग स्टोरीज, रील्स तो तब थे नहीं, सॉरी, स्टोरीज और पोस्ट की भाई अभी ये मैराथन किया, ये मैराथन के साथ मेडल. मैंने बोला आई एम मिसिंग आउट ऑन दिस यार, आई कांट स्टे होम एंड नॉट रन. तो दैट्स व्हेन मैंने खाली रैंडम गूगल सर्च किया, हाउ कैन समवन स्टिल रन इफ दे हैव रनर्स नी. तो आउट ऑफ 100 आर्टिकल्स मेरे को एक मिला बैकवर्ड वॉकिंग. आई वेंट, क्लिक किया मैंने, और पता चला कि भाई जापान और चाइना में तो बहुत 100 years old ट्रेडिशन है. तो जापान चाइना में आर्टिकल में था कि इट्स 100 year old ट्रेडिशन जहाँ लोग बैकवर्ड वॉकिंग प्रैक्टिस करते थे. और क्यों करते थे? क्योंकि अगेन वेरी साइंटिफिक रीजन टू बिल्ड पेरिफेरल विजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या दूसरे मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट करने के लिए. So muscle groups को activate करना is understandable, right? But this peripheral vision also, you've seen improvement in anything? मैं आपको कैसे बताऊं विपिन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई डोंट शेयर दिस विद एनीबडी क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता लोगों में कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं ना दैट आई कांट, क्योंकि वो होते भी ऐसे मोमेंट्स पे हैं कि कोई आसपास रहता नहीं है. तो वो कैसा हो गया कि अगर मान लो मेरे रिफ्लेक्सेस मेरे को लगता है इतने स्ट्रांग है, इतने क्विक हो गए, ओनली बिकॉज आई बीन रनिंग बैकवर्ड फॉर सो लॉन्ग, कि अगर मान लो मेरे हाथ से अगर कुछ लग के अगर कुछ गिरने वाला है, तो ऐसे कितने इंस्टेंस हुए कि मैंने पकड़ लिया वो चीज को अचानक से. या फिर अगर फोन मेरा अगर कहीं गिर रहा है तो मेरा वो डायरेक्ट जमीन पे गिरे उसके पहले मैं मेरा पैर बीच में ले आता हूँ, ताकि वो एटलीस्ट एक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद नीचे गिरे. तो ऐसे कितने इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्हें फंक्शन. कैन आई गिव ड्यू बेनिफिट टू बैकवर्ड रनिंग? बिकॉज ठीक है उस पे भी आते हैं, बट हाउ इट स्टार्टेड आई थिंक गो बैक चाइना जापान, इतने लोग कर रहे हैं. फिर आई केम टू अगेन द मॉडर्न द न्यू एज instances of people running or walking backward, and they were talking in that article, they were talking about elite athletes, कि अगर elite athletes कोई भी sport के हैं, अगर वो injured हो जाते हैं तो उनके coaches उन्हें backward walking and running कराते हैं, ऐसी drills कराते हैं जिसमें backward walking और running involved है, so that they can still keep themselves active while going through that entire rehab process, ensuring their cardiovascular health does not go down. वो करते हैं. मैंने बोला भाई इतना साइंटिफिकली बैक्ड सब प्रूफ्स और यहाँ पे सब है, लेट्स ट्राई इट. तो अगेन घर के पास वाले सेम गार्डन में जहाँ अंकल मेरे को सब टोके थे, वहीं मैं गया. और पहले ही पागल, हमें पता था पहले ही ये पागल है, और अब तो कंफर्म हो गया. और मैं टी शर्ट के साथ गया. अच्छा. मैंने स्टार्टेड वॉकिंग बैकवर्ड. और मैं सच बता रहा हूँ, वो बैकवर्ड जब मैं फॉरवर्ड चल रहा था ना ड्यूरिंग रनर्स नी इंजरी, तब मेरे को स्टिफनेस फील होता था, दुखता था. While going down the stairs, अगर नी बेंड हो रहा है तब काफ़ी पेन होता था. When I started walking backward, I didn't feel any pain. मेरे को लगा भाई ये तो अगेन चमत्कारी चीज़ है, जैसे barefoot running में चमत्कार हो, वैसी मेरे को फर्स्ट इंस्टेंट में stepped out to run walk backward, I could feel a difference. और उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया विपिन कि I started walking backward a lot. वो कुछ मीटर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हुआ, but I was still walking, not running. And I got so confident कि मेरे को लगता है अब रन करना चाहिए. Then again उस गार्डन में वो छोटे से 200 मीटर के राउंड पे मैं 2-3 किलोमीटर चक्कर लगाता था. It took me 6-7 months. इतना कॉन्फिडेंट हुआ तो अपनी एक दोस्त को लेकर who used to run at that point, मैंने बोला प्लीज यू बी माई आई, लेट्स गो आउट, आई वांट टू डू अ 10K. Wow. Then that's how it started. जब रास्ते पे मेरे को बैकवर्ड 10K में वो कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग. और उसके बाद अहमदाबाद मैराथन आ रही थी, मैंने बोला भाई इसमें तो हम 21 बैकवर्ड करेंगे ही करेंगे. और जब वो 21 बैकवर्ड किया, उसके बाद तो माय कॉन्फिडेंस वाज ओवर द रूफ. और इंजरी भी मेरे को लग रहा था कि उस टाइम पे इट वाज डिसअपीयरिंग द इंजरी, क्योंकि जब मैंने इट वाज हीलिंग, क्योंकि जब मैंने बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड रन करना भी शुरू किया, मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था तो देयर वाज हार्डली एनी पेन. तब मेरे को दिमाग में हो कि भाई आई हैव टू
Yeah. keep doing more of backward runs until I completely recover. और उसके साथ मेरी strength training हल्की हल्की चालू ही थी. Right. So that's how the entire backward running came Began. into life. और उसके बाद तो चीज़ें बहुत भयानक. Now coming back to peripheral, vision, थोड़े senses strong हुए. अब now when हर बार तो मुझे backward running पे कोई साथ नहीं दे सकता है ना कि हाँ भाई तुम आओ मेरे साथ दौड़ने, तुम मेरी आंख बन के रहो, नहीं. तो उसके बाद मैं टू अवॉइड ट्रैफिक आई स्टार्टेड स्टेपिंग आउट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और ऐसे ऐसे स्ट्रेचेस पे जहाँ पे ट्रैफिक या व्हीकुलर मूवमेंट नहीं हो. बट अगेन इफ यू आर वॉकिंग बैकवर्ड तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे, भले आपको पता है सीधी सड़क है, फिर भी आपको इतने डरे हुए रहोगे कि आप बिना देखे पीछे दौड़ ही नहीं सकते. यू हैव टू कीप लुकिंग बैक टू मेक श्योर कि भाई तुम बराबर जा रहे हो कि नहीं. तो उस वजह से एक नई प्रॉब्लम आई लाइफ में, नेक स्ट्रेन होने I लगा. was going to say, your neck does not hurt. तो वो course. इनिशियली बहुत स्ट्रेन होने लगे, गर्दन में दर्द, इतना दर्द कि भाई मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसे देखने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी. मेरे को पीछे देखने के लिए पूरी बॉडी घुमानी पड़ती थी. तो मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि मेरे को कभी नेक का प्रॉब्लम आएगा ऐसे, बिकॉज द डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग. Right. तो मेरा पीछे देखना भी बढ़ रहा था. तो अगेन इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग. मैं नेक की भी थोड़ा वार्म अप उसको करने लगा एवरी डे, और उसके बाद तो नेक वाली प्रॉब्लम भी चली गई. सो आई हैव डन द मैक्सिमम दैट आई हैव रन इज 67 किलोमीटर, जो हमने Rajasthan? नहीं, जो हमने ऊना टू धर्मशाला के टाइम किया था. दैट वाज द हाईएस्ट दैट आई हैव रन बैकवर्ड, और वो भी वो पूरी चढ़ान थी. तो आई रिमेम्बर doing all of that. और उसके That was बाद the maximum. I thought you did in Guwahati or in Rajasthan. One of these two also you did backward as backward well. किया तो, but the distance. highest was in Because I remember you and Akash taking some really cool pictures and वो videos. हमने and राजस्थान में Rajasthan. किया था कि वो बैरफुट दौड़ रहा था सीधा, और मैं उल्टा बैकवर्ड रन. And then you were asking people to guess who's running backward. बैकवर्ड that was a cool one. तो हाँ, ये बैकवर्ड रनिंग की जर्नी तो ये रही, और काफी टाइम से मैंने एक्चुअली बैकवर्ड रन किया नहीं है. बट आई थिंक इट्स टाइम टू डू समथिंग Something nice. in समथिंग there, नाइस. there. मैं कुछ सोच भी रहा हूँ करने का. Was the fastest backward half marathon done? फास्टेस्ट हाफ बैकवर्ड रन. Or what is the longest backward run? Do you know? फास्टेस्ट की अगर बात करूं आपके तो नोट्स में होना मैंने, चाहिए सर, ये आपको पता होना चाहिए. हाँ, ये को पता होना चाहिए. मैं एज आई सेड ना, आई एम वेरी बैड विथ नंबर्स. आई थिंक ये चीज़ें मेरे को, बट फास्टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 घंटा 55 मिनट लिया है. भाई शुरू जो करते हैं वो सीधे नहीं दौड़ पाते हैं. हाँ, तो इतने 2 में. घंटा 55 मिनट में मेरा आई थिंक अराउंड दैट टाइम अंडर 3 hours आई हैव डन अ बैकवर्ड हाफ मैराथन. या सही है यार. मतलब आई थिंक ऑल्सो जस्ट another when you add a level of difficulty to your runs and then you get to run easy later, it becomes much easier. Doesn't it feel like मक्खन? बहुत बहुत मजा आती है. है ना? ये मैंने 2 इंस्टेंसेस पे मैंने किया है. पहले तो व्हेन आई यूज्ड टू रन बैकवर्ड, और उसके अगले दिन अगर मेरे को फॉरवर्ड रन करना होता था, क्या लगता तो ऐसा लगता था मेरे को भाई आई हैव गॉट फ्रेश सेट ऑफ लेग्स. है? मतलब मैं उड़ रहा हूँ. और ये सेम चीज अब मेरे को अब होती है व्हेनेवर आई एम डूइंग लोअर बॉडी वर्कआउट. आई स्पेशली कीप माई रन डेज द नेक्स्ट डे, because after a leg day I feel stronger the next day when I run. काफी लोगों के लिए ऑपोजिट होता है कि लेग डे के बाद they don't usually run, पर रखते नहीं है. हाँ. मेरे को बहुत मजा आती है. और मुझे लगता है कि उससे कंडीशनिंग भी होती है. when you training your body to run on those tired legs, maybe sore legs, और तो बाद में और इजी लगता है यार. मुझे तो बहुत मजा आता है. पर वो आपने सही बोला, वो बैकवर्ड रन के बाद अगले दिन रन करना feels too good. Amazing. Superb, dude. We have a couple of other things we need to talk before Yes. you need to head out. Oh, So, dude, you're here for High Rocks. yes, You've done High Rocks Mumbai as well. I did. And yesterday you did High Rocks Delhi. I did. What was the experience like? The first High Rocks that I did in Bombay, उसने ही मुझे पागल कर दिया था. In a very positive way. What an experience. What an experience. अब High Rocks जब उन्होंने अनाउंस किया कि they're going to come to India for the first time, High Rocks के बारे में मुझे पता था कि एज एन इवेंट, एज अ कॉन्सेप्ट क्या है वो. एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि कई चीज़ें नहीं होती कि आप अगर आप देखते हो इफ इट्स फ्रॉम एंड्योरेंस और मे बी स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, कि शायद ये मैं कर सकता हूँ. वो
एक फीलिंग पहले आ जाती है आपको देखकर। तो जब हाईरॉक्स मैंने पहली बार डिस्कवर किया था, वीडियोस मैंने काफ़ी देखे थे उसके, तब मेरे को उसी वक्त एक दिमाग में वो चीज़ आ गई थी कि यार ये चीज़ है ना, मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ। वो बहुत पहले की बात है। और उसके बाद जब हाईरॉक्स ने अनाउंस किया था कमिंग टू इंडिया, आई गॉट रियली एक्साइटेड कि भाई यार अब तो ये बनता ही है करना। एंड रजिस्टर्ड फॉर द मुंबई लेग, and it was an insane experience. Not exaggerating, nothing. महंगा है, of course. As an event, you pay almost 9,000 rupees. It's like an to- ultra. Yeah, Yeah. you pay almost 9,000 rupees to get, to get registered. But the moment you step in, the entire journey, the experience is so, I would say, so top notch. कि आपको मज़ा आ जाएगा अंदर। मतलब जो मैंने वीडियोस देखे थे उनके, जहाँ शारजा, दुबई और जर्मनी में उनके जितने हाईरॉक्स हुए हैं, सेम फॉर्मेट, सेम फील टू इट दैट आई गॉट टू सी इन बॉम्बे। और आई वाज ऑल आई वेंट गागा ओवर इट इवेंट के पहले, ये सब तैयारियां देखकर। और जब इवेंट पूरा कर लिया उसके बाद तो फिर और मज़ा आ गई, बिकॉज आई completed my first high rocks in a, I would say, in a respectable time, which was 1 hour and 27 minutes. Yeah. तो वो 1 hour 27 minutes जब मैंने किया, मेरे को पता नहीं था वैसे कि रिस्पेक्टेबल टाइम है क्या। वो तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि भाई 1 hour 30 or 40 minutes is considered as a standard time to kind of finish high rock singles in men's category. I was really happy. बट अगेन इतने सारे वर्कआउट्स हैं वहाँ पे अंदर जो मैंने कभी किए ही नहीं थे फर्स्ट हाई रॉक्स के पहले, बिकॉज आई डोंट गो टू अ जिम। तो वो चीज़ मैंने कभी नहीं की। जैसे वो स्की अर्ग हो गया, इट्स सच अ स्पेसिफिक Yeah. मशीन, Right. राइट। रोइंग तो चलो काफ़ी जिम्स में अवेलेबल होते हैं, बट नेवर वेंट टू अ जिम। सो मेरे को उसका मैंने कर रखा है, ऐसे नहीं कभी किया नहीं है, बट आई एम नॉट यूज टू एंड डूइंग इट, राइट। और अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। बट मेरे को लगा कि मैंने जितने सालों से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे जितने वर्कआउट्स थे उसमें कहीं ना कहीं वो सिमिलर जो मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिमिक हो रहे हैं इन अ रेगुलर वर्कआउट। तो आई फेल दैट आई हैड दैट स्ट्रेंथ टू काइंड ऑफ अचीव ऑल ऑफ दोज वर्कआउट ऑन द डे ऑफ द रेस। And yes, the best thing is basically before the race, you can actually get a feel of all those equipments, the entire thing there, because वो एक warm up, experience zone बनाते हैं before the race, so that you can experience all the equipments, all the workout before you actually go on to the track. Right. तो पहली बार जाके मैंने ski erg और पहली बार, like there was no gym that you went to for this particular movement? never Wow. first time ski erg मैंने वहीं किया। और मैंने बोला यार चीज़ तो बढ़िया ही लग रही है, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। बस इस तरीके से बॉम्बे हुआ ख़त्म। और उसके बाद आई गॉट टू नो कि भाई किस तरीके से अब नेक्स्ट हाईरॉक्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर द दिल्ली इवेंट ऑल्सो। वेल तो क्या कह सकता हूँ, बट हाँ वो सारे जो मूवमेंट्स थे वो सारे मैंने मिमिक किए मेरे रेगुलर वर्कआउट में, विथ हेल्प ऑफ केटल बेल, विथ हेल्प ऑफ थेराबैंड्स, और आई ट्रेन फॉर इट। तो मैंने दिल्ली हाई रॉक्स में पूरे 5 मिनट स्लैश किए, कम किए फ्रॉम nice. माई मुंबई टाइमिंग। सो रियली रियली हैप्पी। बट अगेन ये फॉर्मेट पूरा ऐसा है कि रनिंग ज़्यादा इसमें रहती है, एंड बीइंग रनर वो एक एडेड एडवांटेज रहती है ज़्यादा। I thought not much running. नहीं 8 किलोमीटर है। अब 8 यू स्टार्ट विथ 1 किलोमीटर रन एंड देन यू डू अ वर्कआउट। तो ये एक पूरा फ्लो है, 1 वर्कआउट 1 रन, 1 वर्कआउट 1 रन। Right. So 8 workouts and 8 kilometer of Right. running. Yeah, I read somebody's post. Runners struggled with the workouts, and the gym bros struggled with It's the runs. It's vice versa. But there are also people who do both extremely well. आजकल Yeah. हाइब्रिड एथलीट का Yeah. काफी ये Yeah. चलन है। मैं अपने आप को कहता तो नहीं हूँ हाइब्रिड एथलीट, बट Mm. जिस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग और सब रहती है, Right. ऑटोमेटिक आई फॉल इनटू दैट Yeah, I category. mean, I don't know why, but looking at your training and when this event came, and I was like, ये सार्थक टाइप की इवेंट है, मतलब लगता है। मेरे को Yeah. भी जब मैं है आपको ना? बोला ना, व्हेन आई हाँ। फर्स्ट डिस्कवर्ड हाईरॉक्स, मेरे को भी लगा कि ये चीज करने में मजा आएगी और मैं कर सकता हूँ। Hmm. That first thought turned into reality. Yeah. But also proud of myself कि बिना
किसी जिम गए, ये चीज Yeah. करना है ना, वो तुमको और कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार, अगर आप जाके करोगे तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू improve your performance in a lot better way. बट बिना किए भी अगर तुम इतना कर सकते हो Yeah. तो Fabulous. it's nice. Brilliant, absolutely brilliant. Tell us quickly about your strength training, because your strength workouts are all outdoors Correct. and at home, maybe on the terraces, and they're all so inspiring. Like without much equipment, just maybe sometimes kettlebells and a couple of dumbbells. Sometimes you're able to do so much, and you have a six-pack ab. You got a wonderful physique, and we haven't even spoken about this. Nutrition plays a huge role. Correct. So wrap all of that for us in a couple of minutes. In a couple of minutes. Okay, I will try Mm. to. Mm. Strength training is something जिसका मेरे को importance कुछ सालों पहले पता चल गया था. And since then, it has completely changed my life because touch wood, I haven't gotten injured since the time I've started doing strength training. I feel much stronger. I could achieve my personal best timing, and the credit goes to strength training. It clearly shows. And of course, उस process में physique भी automatic बढ़िया हो गया है, right? And gym मैं कभी गया, मतलब इनिशियली आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स जब मेरे को वो नी इंजरी थी, बट उसके बाद मैंने अपने आप ही घर में कुछ कुछ इक्विपमेंट्स बसाना शुरू किए. डंबल्स हो गए, केटलबेल हो गए, मुदगर हो गया, तो अपने आप मैंने चीज़ें सीखी. एंड जिम वो चार दीवारी में फॉर सम रीज़न आई डोंट एन्जॉय. आई फील वर्किंग आउट इन दी ओपन या घर के कंफर्ट में, मम्मी आसपास से सुबह में बैठी है, मम्मी अपना वर्कआउट कर रही है, मैं अपना कर रहा हूँ. तो वो एक अलग सा माहौल, एक कंफर्ट लेवल है जिसमें बहुत मज़ा आती है करने में. एंड टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, वो मेरे लिए आई थिंक अगर इफ़ आई एम टू काइंड ऑफ पुट इट इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस कि पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थर्ड क्या है, आई फील न्यूट्रिशन कम्स ऑन टॉप फॉर मी, जो इनिशियली नहीं था मेरे लिए. बट सिंस द टाइम आई हैव चेंज्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई ईट एंड हाउ मच आई ईट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि सब पहले तो मेरा दिमाग ऐसे ही चलता था, अगर मैं इतना दौड़ रहा हूँ, अगर मैं 1500 कैलोरी एक रन के बाद मैं बर्न कर रहा हूँ, तो मेरे को उससे डबल खाना है. तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन था कि मेरे बॉडी को बहुत खाना चाहिए, नहीं तो वीक हो जाएगी. बट आई वॉज रॉन्ग ऑल दिस वाइल. मैंने जब स्मार्टली खाना शुरू किया, लाइक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, फाइबर्स, फैट्स, मैं अभी भी गिनता नहीं हूँ. आई डोंट माइक्रो मैनेज, आई डोंट नो किसमें कितना क्या है, बट आई लिसन टू माई बॉडी, उस हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ. बट आई थिंक क्वांटिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. और वो मैंने रियलाइज़ किया इतने सालों में कि अगर तुम अच्छा खा रहे हो और एक डिसेंट क्वांटिटी में खा रहे हो ना, तो आई थिंक यू गोइंग टू बिकम अ मच बेटर ह्यूमन. और स्फूर्ति रहेगी बॉडी में, यू गोइंग टू बी यू गोइंग टू फील मच बेटर. तो हारी हाचिबू इज अ जापानीज सेइंग कॉन्सेप्ट वेयर पीपल फॉलो. मैंने इकिगाई बुक में पढ़ा था कि अ पर्सन शुड ईट ओनली should not fill their stomach up to 100%. 80% खाना चाहिए इंसान को. उस पॉइंट पे खाना छोड़ देना चाहिए जब उसको लग रहा है कि भाई मैं एक रोटी और खा सकता हूँ. यू डोंट फिल योर स्टमक कम्प्लीटली, राइट? वो तो चीज़ है, तो वो इट्स बिकॉज ऑफ अ रीज़न. और वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिला ये चीज़ शुरू करने का. एंड सिंस दैट आई हैव बीन फॉलोइंग दैट. तो मैं उस पॉइंट पे कभी पहुंचता ही नहीं हूँ कि भाई अब खाया नहीं जाएगा. ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा और खा सकता हूँ. दैट्स वेयर आई लीव माय फूड कि दैट्स इट. आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट. तो वो छोटी and I believe, so what's really important to just say here also is it's so inspiring in so many ways, because I've seen you build up to it. You weren't like this when we first met, and you weren't giving so much importance to food and exactly that, and strength training that you're talking about, and the endurance that you've built over the years. Correct. All of that. तो ये भी प्रूफ है कि इस तक बिल्ड किया जा सकता है. सो द सार्थक मलानी स्ट्रेंथ दैट वी सी ऑन सोशल मीडिया एंड दोस वर्कआउट्स एंड हाई रॉक्स टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग दैट वी सी नाउ, यू बिल्ट अप टू इट. इट्स नॉट लाइक जब आपने शुरू किया था आप इस लेवल का कर पा रहे थे. अभी भी जो अमेजिंग पुल अप्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू कैन पुल ऑफ प्रीटी इजीली, कि कुछ भी दिखा तो लटकना जरूर है, टार्जन वाली हरकतें जो चलती हैं, you've built up to all of that. It's inspiring to see that. I have. हाँ, all these little changes I feel have helped me. अगर मैं खाली एक चीज़ काफ़ी मैं शेयर करूँ ना, कि how without training for high rocks in a very traditional way while going to the gym or doing a simulation, कुछ ऐसी चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प किया विपिन, जो मैं वो कह सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल कंपाउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं जब वर्कआउट करने जाता हूँ मेरे घर के पास गार्डन में, इट्स अ
250 मीटर वॉक, तो मैं जब ही निकलता हूँ मेरे डंबल्स, मेरे पास 12.5 किलो का पैर है, तो मैं 25 किलो मैं घर से लेके उतरता हूँ। मैं जाता हूँ 250 मीटर उस गार्डन में चल के डंबल के साथ, और वही वर्कआउट करके मैं वापस चल के आता हूँ और घर पे रखता हूँ। तो आप देखोगे फार्मर्स कैरी है हाईरॉक्स में, जिसमें आपको मेंस कैटेगरी में 48 kgs आपको कैरी करना है फॉर 200 मीटर्स, राइट? तो मैं ये जो घर से मैं डंबल लेके जा रहा हूँ रोज, और कई बार लिफ्ट की जगह मैंने सीढ़ियाँ ले ली, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, मेरे को लगा इट ऑल शोड अप इन हाईरॉक्स। मैंने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया था, ये तो मेरी मजबूरी में, बस गाड़ी वाड़ी नहीं है तो मैं भाई उठा के लेके जा रहा हूँ पॉइंट A टू पॉइंट B वर्कआउट करने के लिए, अगर मेरे को बाहर वर्कआउट करना है तो। बट आप देख रहे हो ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी इन सम और द अदर वे हियर। तो मेरे को वही लगता है, दोस लिटिल चेंजेस दैट यू डू एवरी डे, तुमको पता नहीं वो कब कैसे काम आएंगे आपको। तो वो मेरे को सोच के ही मजा आती है। Absolutely beautiful. Absolutely beautiful. Let's wrap this with an advice from you to someone who's struggling to start, is not a runner, and looks at you doing all of these crazy workouts and feels like, yaar, this is aspirational, but I can't even think of. पता नहीं मैं ज्ञान देने के लायक हूँ कि नहीं, बट जो मुझे लगता है कि what motivated me is what might motivate others also, कि एक तो the amount of times I used to fall sick has gone down to a level that I can't even begin to talk about. मतलब touch wood, वो छोटी मोटी बीमारियां लगती नहीं है, मतलब your body is always in a top notch condition. So that's because of how you eat, what you eat, and you keep your body active, you keep moving, doing something or the other. और उसके अलावा वो एक मोटिवेशन तो डेफिनेटली होना चाहिए कि आप यार बीमार नहीं हो रहे हो इतना फ्रीक्वेंटली। उसके अलावा अगर आप कहीं बीच हॉलीडे पे जा रहे हो, तो अगर आप टी शर्ट निकाल रहे हो या तो वो एक मोटिवेशन मेरे को लगता है अपने आप आना चाहिए। तो अब ऐसा हो गया है कि आई ऑलवेज वांट टू बी 24/7 365, आई फील आई वांट टू बी बीच रेडी। क्योंकि अपने आप को तुम देख रहे हो कांच में, तो वो एक I don't know, lovely. ये नशा मुझे है। The aesthetic side of it is probably amongst the things that appeals Top to reasons most people. Yes, to right. get- Aesthetically, That's true. but what really inspires me more about you is the strength also that you have. The strength is immense. Like this, it's wonderful. Like not everyone can do pull-ups. And Again, this it's is all so about amazing. conditioning. Yeah. People will start doing at least 1-2. मैं भी स्ट्रगल करता था, 2 से Yeah. आज मैं एक गो में 20 से 25 पुलअप्स कर लेता हूँ। Yeah. वेरी क्लीन स्लो इजी पुलअप्स। Yeah. पुशअप्स भी एक बार में 50 हो जाते हैं, जो मैंने भी शुरू किया है 2-3 से ही। Right. बट पता है कि वो उसने कितना इम्पैक्ट किया है मेरी ओवरऑल फिटनेस जर्नी को। सो हैंस चीज़ कभी छूटी नहीं, और वो हमेशा कंटिन्यू ही किया है। Super. तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आई थिंक कितनी सारी रीजंस स्टार्ट करने के लिए। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड, मेरा तो घूमने का तरीका भी मतलब ऐसा है कि आई वांट टू वॉक एज मच एज आई कैन। अगर कहीं इंटरनेशनली घूम रहे हो, तुम यूरोप पर जा रहे हो घूमने कहीं, तो यू कांट रियली बुक अ कैब ऑन योर ओन। इतनी महंगी है वहाँ पे पर्सनल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। तो इतना आप वॉक कर लो कि यार घूमते घूमते जगह देख लिया, उसका मजा ही अलग है। यू एब्जॉर्ब थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। So wonderful, sir. Yeah. What a lovely conversation this has been. As expected. हमें और करनी चाहिए यार, जब भी हम एक दूसरे के शहर में आते हैं, we should have these conversations. मिलते हैं, करते हैं। मैं पुल अब्रॉड ऑर्डर करता हूँ इसके बाद। ठीक है। बिल्कुल करो। यहीं पे कहीं लगा। आई थिंक आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट ऐसे शुरू होने चाहिए, है ना भाई 10 पुलअप होगा। हाँ, उसके बाद सब बैठेंगे। पुशअप्स तो हमने सोचा था, लाइक पुशअप्स तो कर ही सकते हैं, लाइक द होस्ट एंड द गेस्ट बोथ डू एटलीस्ट 20 पुशअप्स एंड लेट्स डू इट। लेट्स एंड विद व्हाट 5-10 पुशअप्स। यार नहीं अलग-अलग करते हैं। लेट्स डू 20 पुशअप्स राइट आफ्टर दिस। चलो डन, ठीक है, की बात है। चलो सुपर ब्रूट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड you, सी यू Vipin. वेरी सून Was- माय ब्रदर। लवली, Loved it. cheers. Glad to be featured on your podcast and Thank you. be at least one of the podcasts before you complete your century. 100 episodes. 100 episodes. Yes. Thank you. Honored and privileged. Cheers, man. Cheers.